A very warm good evening. Welcome all of you, and a very big thank you to Reena ma'am and Dr. Amit Agrawal. So, viewers, we are from Amaze Foundation, and you can see our number 9999369988. You can ask your questions related with the cancer, and I just want to brief a little about our guest today. Dr. Amit Agrawal is from BL Kapoor Hospital and he's Senior Director and HOD of Oncology Department, Medical Oncology. Sir has a vast experience. He has worked with Fortis Hospital and Batra Hospital and a few hospitals from UK and Oxford also. And I guess this is very short intro, but I'm very happy to introduce Mrs. Reena Ranjan. She's with us today and she's very positive. I got very good learnings from her. She is two times cancer survivor. Welcome to our show, ma'am. Welcome to our show, sir. And thank you so much to give us some time. Thank you so So, much. yeah, thank you so much on World's Rose Day. This is a great opportunity to have you people with us. So I would say that Reena is our heroine then, So, the star face. Definitely. with such wonderful able doctors around, happy Rose Day to you, sir. Oh, thank you. Wouldn't be Same to possible you. without all of you. Oh, so is it a rose day today? Yes, sir, it's It is World a Rose Rose Day. Day. It's for just to encourage, just to motivate the cancer fighters, cancer survivors, Oh, basically. wow. Okay, excellent. And that all is just because of you, the warriors we are having with us. It's a combined effort. Everybody is pitching in. Somebody gets some role to play, and somebody gets another role to play. I think that's okay. Definitely, sir. Yeah. So I think this in itself is a great role to play by letting everybody know what can be done. How can we Yes. mitigate the benefit of such thing? It is useful. It's very useful. So, sir, there are some questions. जब तक अभी बाकी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक I just want if you can explain us, like from being a medical background, we know something about cancers, but for the layman, if they want to understand what is cancer exactly, how can they? तो अगर हम लेमैन कंटेक्स्ट में समझना चाहें तो हमारी बॉडी का एक एक सेल आपस में कनेक्टेड और रेगुलेटेड है somehow if you're a believer in God or nature things are such कि अगर सेल को 50 से 100 होना है तो वो 100 से 101 नहीं हो सकता दिस इज ग्रेट नेचर इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट विच एवर वे यू से सो जहां पर भी सेल मिस्टेकनली 100 का 101 या 102 या 103 या 105 हो जाता है देर आर मैकेनिज्म इन आवर बॉडी जो कि वो एक्स्ट्रा 5 सेल्स को मार देता है and therefore you remain in equilibrium, you remain in balance, you remain in the control. Things are like that. So अगर हमारी जेनेटिक मशीनरी इस मामले में गड़बड़ा जाए और इक्विलिब्रियम को ना पहचान पाए इन दैट केस आपके सेल 100 के 150 के 200 के 2.5 लाख करोड़ अरब खरब होने शुरू हो जाएंगे अनरेगुलेटेड हो जाएंगे तो अगर ऐसा ब्रेस्ट में होता है तो ब्रेस्ट कैंसर है ऐसा अगर फीमेल्स के सर्विक्स में होता है तो सर्वाइकल कैंसर है अगर किसी के लंग्स में होता है एग्जाम्पल स्मोकर नॉट नेसेसरली स्मोकर तो ये लंग कैंसर है अब ये एक मास का जो गुच्छा बन गया है जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है दैट वुड टेक प्रायोरिटी अब उसके पास एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है नॉट ओनली वो बढ़ता रहेगा सेकेंडली वो आपके नेचुरल होस्ट नॉर्मल सेल्स के ऊपर प्रायोरिटाइज कर जाएगा इट विल फाइंड अ मैकेनिज्म इट वांट्स वाटर फॉर इटसेल्फ इट वांट फूड फॉर इटसेल्फ इट वांट ऑक्सीजन फॉर इटसेल्फ इट वांट ब्लड फॉर इटसेल्फ नाउ इट्स अ पैरासाइट इट इज ग्रोइंग ऑन यू using your resources to live and allowing the normal cells and the normal body to die. This is a very simplistic definition of cancer. It is an autonomous, uncontrolled, unregulated growth of normal cells which have gone wrong. Okay, that is what is cancer. If you pick up 100 rogue cells, 100 bad cells, you can kill it. But if your whole country is full of rogue cells, a stage 4 cancer.
then it is very difficult. You can possibly treat a state, you can possibly treat a city, you may possibly treat a larger area, but if your whole body, the whole country is full of that situation, it's almost nigh impossible to regain the previous state of health. That's why pick it up early. Don't allow it to happen. But if you have it, unfortunately, pick it up early before it is too late. So my second question is from your last sentence itself कि हमें इसको पकड़ना चाहिए जल्दी करना चाहिए क्यों तो what are the warning signs like in today's scenario we are in so much hustle bustle that we don't give attention to our health basically कि हमारी बॉडी में कुछ होता है और हम ऐसे ही उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अरे ठीक है हो जाएगा ठीक इतना कुछ नहीं है मे बी ऐसे ही होगा तो क्या Correct. साइंस होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि अब दिस इज द जस्ट राइट टाइम वी शुड गो टू द डॉक्टर एंड वी शुड बी चेक्ड इन Okay, a very good question, a very common question, but unfortunately कैंसर के कोई specific signs ज्यादा होते नहीं है. There are few signs. मान लीजिए let's say an example of lung cancer. So lung cancer के सिम्टम कोई ऐसा स्पेशल नहीं है जिसके पहले सिम्टम पे आप सोचोगे कि यहाँ गड़बड़ है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल को खांसी हो रही है तो आप स्टेट में ये नहीं सोचते हो कि कैंसर हो गया होगा, आप डॉक्टर को दिखा लेते हो. आप ये सोचते हो सिंपल वायरल होगा, पॉल्यूशन है, इरिटेबिलिटी है, तबीयत खराब है, एलर्जिक है. तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है. ऑल्दो अगर हम टॉप टू हेड से लेके चलें तो हम एक जनरल डिस्कशन कर सकते हैं. लेट से हेड नेक, मुंह का और गले का कैंसर हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी कंट्री में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का इंटेक वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरह हो गया है और गुटखा एक एक अलग ही चीज है जो कि बाकी वेस्टर्न पॉपुलेशन में रिलेटिवली कम है. इसका कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम नहीं है, पर एक घाव जो ठीक नहीं होता, एक घाव जो ब्लीड करता है, साथ में आवाज में चेंज आ जाते हैं, ठीक है, मुंह खुलना बंद हो जाता है या मुंह कम खुलता है, या एज आई सेड आवाज चेंज हो रही है, या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या खांसते में ब्लीडिंग हो रही है, ये अनयूजुअल सिम्टम्स हैं. या अगर आप तंबाकू खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं और आपको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम लगता है तो आई थिंक आपको और कॉमन पॉपुलेशन के मुकाबले ज्यादा डरते हुए जल्दी सोचना चाहिए. बट एक घाव, एक छाला जो कि ठीक नहीं हो रहा है उसको सिंपल नहीं मानना चाहिए. नाउ दैट मिसेस रंजन इज हियर एंड आई डोंट नो कि उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेस्ट प्रॉब्लम. So I was just So you see, about to ask, ma'am. Yes. हाँ, Sorry but to I interrupt. thought but I thought it is her prerogative to answer her personal thought process. I assumed being a female, but I'm not. It's not the right thing. So एक ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर में से आता है अर्बन एरियाज में. रूरल एरियाज में आज भी ब्रेस्ट कैंसर टॉप मोस्ट फीमेल कैंसर में काउंट नहीं होता, सजेस्टिंग कि हमारी जीवन शैली से काफी फर्क पड़ता है. अगर हम रूरल लाइफस्टाइल रखते हैं, which is not a practical answer to the problem, we can't start going to villages, but anyway that is what it is. तो अगर हम एक चीज याद रखते हैं कि ब्रेस्ट में अगर लंप है जो कि रिजॉल्व नहीं होता है, ये एक कॉमनेस्ट सिम्टम है. और सिम्टम है अगर निपल से डिस्चार्ज होता है, पर्टिकुलरली ब्लडी डिस्चार्ज होता है, लंप धीरे धीरे बढ़ता रहता है. अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर के लंप्स यूजुअली पेनफुल नहीं होते. ओके, एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट में होते हुए पेन यूजुअली कैंसर से कनेक्टेड नहीं होते. तो अगर कोई लंप है और आप कहते हो पेनफुल नहीं है और इंतजार कर लेते हैं, थर्ड स्टेज तक इंतजार कर लेते हैं, दिस इज अ sarcastic comment obviously, so that should not be ignored, should be looked after. A male or a female, स्मोकर और नॉन स्मोकर, अगर 15 दिन से ज्यादा की खांसी है या एक बार की भी खांसी में खून आ जाता है तो आई थिंक इट्स अ रिस्की सिम्टम. बट खांसी में खून आना एक ऐसा सिम्टम होता है जिसमें कोई भी डर जाता है. मुंह से खून, खांसी में खून, यूरिन में खून, स्टूल में खून, एक ऐसा सिम्टम है कि कोई भी इग्नोर नहीं करता. जहां से अगर आपके किसी भी अननेचुरल ऑरिफिस से ब्लड आता है, then you are really scared. Then is the name when you say कि अब गड़बड़ हो गई है. Similarly, I significant. just want to interrupt for one thing. Actually, I was just going through the some researches and I just came to know that this breast cancer is actually common in males also.
It can happen to a male also. It can happen to a male, but it is not a common cancer of the male. मेल्स में अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में 1,000 लोगों में मान लीजिए 30 पर 1000 पेशेंट की इंसिडेंस है, जो कि वेस्टर्न कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा हाई है. तो मेल 1000 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या मे भी कम हो सकता है. मेल ब्रेस्ट कैंसर रिलेटिवली अनकॉमन कैंसर है, बट हाँ ये कह सकते हैं. आई डोंट थिंक मेल्स को ये लेके चलना चाहिए कि मेल ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है. मेल्स को ये लेके चलना चाहिए कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रेयर है, हो सकता है. उसका बहुत सिंपल रीजन है, मेल्स में ब्रेस्ट एक डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता, एट्रोफिक ऑर्गन होता है, डेवलपिंग ऑर्गन नहीं होता. ब्रेस्ट कैंसर का कुछ हद तक हार्मोन डिपेंडेंसी होती है और मेल्स में फीमेल्स हार्मोन्स की कमी होती है. देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो जिसके रीजन होते हैं, इसलिए यूजुअली मेल में ब्रेस्ट कैंसर अनकॉमन होता है. फीमेल में ब्रेस्ट सर्विक्स के कैंसर्स कॉमन होते हैं. मेल्स में लंग, हेड एंड नेक के कैंसर कॉमन होते हैं, मेनली बिकॉज दे स्मोक, दे कंज्यूम टोबैको. इवन एल्डरली लोगों में प्रोस्टेट के कैंसर कम होते, ज्यादा होते हैं. Uncontrolled weight gain, uncontrolled weight loss, unexplained weight loss, persistent vomiting, persistent constipation, persistent diarrhea, loss of blood through the stool, loss of blood through the urine. और अगर आपके स्किन या फेस या कहीं बॉडी पे वॉट या मोल है, ब्लैक कलर के तिल जो सडनली बढ़ जाते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ब्लीड करने शुरू हो जाते हैं, उन लोगों को स्किन कैंसर का भी डर होता है. ये सारे जो मैंने सिम्टम बताए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेट के नीचे के, कि अनएक्सप्लेन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ब्लीडिंग. अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत सारे लोअर इंटेस्टाइन के कैंसर पाइल्स के डायग्नोसिस की वजह से डिलेड होते हैं. आपके स्टूल में अगर ब्लड आता है तो एक लॉजिकल आंसर है कि पाइल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर परसिस्ट करे तो इस पाइल्स के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए. दिस इज समथिंग जो कि हमारे रेक्टल और कोलोनिक कैंसर के कुछ पेशेंट के इग्नोर होने का रीजन होता है. So I come to Reena ma'am. Ma'am, I just wanted to know what are the symptoms you have seen initially, if you want to share with us. Well, Garima, I never felt anything because I have always been a very health conscious person. Like my lifestyle was very disciplined and no consumption of alcohol or tobacco whatsoever. It's just that I was going through my menopause and I suddenly realized that I have a lump in my right breast. And I was a little ignorant about it, thinking that it could just be like a lump, because nobody imagines that they could ever suffer from cancer. And I let it go. But after a gap of 2 years, I started bleeding as in bleeding profusely. And I didn't know what was happening to me because during this time, while this lump was there with me, I used to feel very tired, very drained off, very lazy, very heavy in my head, nausea feeling and things like that. But one couldn't correlate as to why is it happening. Right. So I just took it like a normal kind of a thing. And then when this bleeding took place, that was like an alarm for me. And that is how I ran to the doctor. And I had to go through a series of tests like a mammogram and a sonography of the uterus and things like that. And that was the time when the radiologist, she started questioning me. And I was very blatantly, very blunt to her. I said, look, we can talk. So she said, I can see a beginning of something very bad in you. So I asked her, is it a cyst? Is it a tumor? She says, no, this is cancer. And I did not know how to react because that was the most horrific time of my life that I could ever reveal or think of. And then I was guided rightly. I was asked to go and write in that fast and went through series of all my tests and it was diagnosed that I'm suffering from carcinoma grade 2. And then I was asked to undergo a surgery. So I was very Am I thought of
And why There me? is some network issue. We are losing your voice. Are you losing my voice? I'm very sorry Yeah. about that. No, it's okay. It's now perfectly okay. Yeah. I'm sorry about that. It's okay, ma'am. Yeah. And Carry on. then the doctor said that I had to undergo surgery. And now I thought, like, you know, I was devastated. I thought this is the end of my life. I have nothing to look forward to. And my family was very supportive. And initially, they were also of the same opinion as I was because I was very scared. But then they became my strongest support. Right. And my doctors were very nice. And I went through this surgery and realized after my surgery was that it is a life-changing experience altogether. Had I to act fast, like I wouldn't have wasted 2 years. I would have gone for my checkup, done things in the rightful manner. I would have been answerable to myself, taking corrective actions. I think somewhere, you know, something nice would have happened. I wouldn't have had to go through this. But then, as life would say, you know, you can't predict what is there in store for you. Right. But then after that, there's a lot of precautions that you've got to take care. Your diet, your exercise, your sleep, not many things, you know. So मैम बेसिकली कहते हैं ना कि कैंसर जब मतलब एक पर्सन को होता है फैमिली में बट होल फैमिली सफर्स विद दिस. So you said very But rightly कि family support is very very necessity at that time. yeah, you have to have the right frame of mind, which you don't have at that point of time when you come to know. Because see, nobody's prepared. Cancer, the word itself, is so fearful that सुनते ही लोगों को लगता है हाय अब तो खत्म, उनकी दुनिया उजड़ जाती है. But then there is a positive way to handle it and to look at it. अपना सोच, अपना नजरिया, like, you know, you got to have faith. Yes. You The cannot keep positive frame of brooding. mind. Yeah. Your Yeah, you body cannot keep, respond as you think basically. and you cannot keep brooding. अब जो हुआ है, होने को तो कोई टाल नहीं सकता. You cannot undo what is done. But then you have to take care. You have to be precautious. You have to have your timely checkup. You have to have your timely follow-up with the doctor because your doctor is your best friend and guide. Rather than listening to a lot of people, laymen here and there, it's better you trust your faith in the doctor, the treating doctor. There couldn't be anybody better than him to guide you. And then we are also responsible equally as we make these doctors responsible for us. We have to cooperate with them. बिल्कुल. No? Definitely, doctor is doing their part, but we have to cooperate and we have to follow what they are saying. Because normal human tendency ऐसा होता है कि we blame the doctors. अरे ये डॉक्टर, ऐसा नहीं होता. आप पहले खुद को ब्लेम करके अपने अंदर झांक के देखो कि आपसे कोई चूक तो नहीं हुई है. Doctors are there to save your life. They are a giver of life. Right? Like मेरे केस में like मैंने कभी सोचा नहीं था कि I would suffer from cancer. तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई. And why me of all the people? Then I had this friend of mine who said, why not you? And I was a very happy-go-lucky person. Like, life was one hell of a fun for me. Like, you know, my career, everything was in place until this thing happened to me. And then I started being at home. But then my family played a very big role in this. They said, अरे यार घर में बैठ के क्या कर रही हो तुम? बाहर जाओ, try to gain your confidence back. अच्छी अच्छी चीजें सोचो, do things. फिर मैंने सोचा यार, exactly, जो होना था वो तो हो चुका है. But now what? And that is how I started getting active and started doing things that I love the most, started indulging in myself, starting loving myself more. And I had all the happiness that I thought that was all gone once. So my way of looking at life is very different now. I get up in the morning, I do my meditation, I go for my walk, I eat healthy, I go by the doctor's prescription,
I have my medicines on time. I go for timely follow-ups. I sleep on time. And all these things are very important. So that is what we call holistic health and the healthy lifestyle. Basically, it is very important to follow all that, but we don't realize it until and unless there is really some emergency. Garima, if you allow me to say that realization सब में होती है, but acceptance नहीं होता. There's a, acceptance वो होता है कि आपका दिल और दिमाग अब मान चुका है कि ये है. But one has to move on. Like hardly, अभी 2 साल भी नहीं हुआ. I was recuperating from my cancer thing, the setback and all that. Life started bouncing and things started looking beautiful. I got to know that I have cancer in my parotid gland. I had a small cyst on my cheek, and nobody exactly could diagnose what it is. And I went through many doctors, unless I met a doctor from Apollo, and he said, okay, look, I think this is cancer. I said, you're not God, doctor. He says, I may not be God, but I have the eyes. Then he asked me to go and get a couple of tests done, and then I get a call saying that this is carcinoma in the parotid gland. Then he called me, he explained everything to me, how the procedure would be, because it was the question of my face. Because nobody would want to spoil their face. Nobody would want to have a scar on their face. And I was again psychologically bogged down, didn't know what to do. अब क्या, अब थोड़ी सी दुनिया मतलब कि मेरे पर मुस्कुराने लगी है और अब this is the end again. मैंने कहा नहीं यार, एक निकल चुका है, ये भी निकल जाएंगे. And believe you me, on the 9th of March this year, I underwent this surgery on my face. And it was 2 months that my face had completely gone crooked. Absolutely. And I think after a week, 10 days, the lockdown was declared. I had to go for my electric stimulation, which I couldn't because I got a call from the hospital saying that, please do not come to the hospital because of COVID. I can't eat, I can't drink. I had my own, shortcomings because of this surgery. And then just to interrupt you, but many of our viewers, they are really appreciating you. They are cheering for you. And God bless all of them. God bless all of them. And then my doctor said that I had to do some lymphatic exercises on my face. And that is how I was guided. And that is how 6 times in a day, I used to do that exercise. If you see, this whole thing was cut until my neck. And God is so kind that I don't have a scar on my face. So there are doctors who are God. You don't see God, but they are gift of God who saved your life. So thank you so much, ma'am, for sharing all this with us. So मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो मैम ने बात की कि पहले breast cancer, then ये parotid gland का cancer. So how is it possible? What about the multiple cancers in a person? So multiple cancers common नहीं होते. Unfortunately, Mrs. Ranjan को ऐसा हुआ. Breast cancer और parotid cancer एक unconnected बीमारी है. Difficult to answer the question कि इनको breast cancer के बाद parotid cancer क्यों हुआ, difficult to answer. But parotid cancer as such अपने आप में uncommon cancer है. Luckily ज़्यादातर parotid cancer का cure rates बहुत high होता है. So I would say कि Mrs. Ranjan, your chance कि आपके parotid cancer के लिए कुछ नहीं होगा आगे जाके, the probability is very high. रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की multiple cancers की, जनरली एक कैंसर होना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है. सेकंड कैंसर, मल्टीपल कैंसर होना रेयर है. आई थिंक एंजेलिना जोली ने इस बात को पॉपुलराइज किया है मल्टीपल कैंसर्स का. आई डोंट नो कितने लोगों को पता है. क्वेश्चन उठता है कि कैंसर का कॉज क्या होता है. जेनेटिक कॉजेज, दैट मीन्स इनहेरिटेड कॉजेज, दैट मीन्स आपने कोई बाय बर्थ जीन इनहेरिट की है बाय फ्रॉम योर मदर और फ्रॉम योर फादर.
दैट इज वाई कैंसर होने के चांस ज्यादा है और मल्टीपल कैंसर्स होने के चांस ज्यादा है। ये अपने आप में एक अनकॉमन इवेंट है। बट फैमिलीज लाइक एंजेलिना जोलीज फैमिली, जिसमें मदर की साइड से इनहेरिट होता है, ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर कंबाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हायर होती है। बट लेट मी आंसर यू द क्वेश्चन, अगर मेरे को कोई मौका दे, इफ गॉड गिव्स मी अ चांस एंड सेज कि व्हाट डू यू वांट टू रिमूव, smoking as a cause of a cancer or a genetic multiple cause of a cancer, I would say smoking and related thing as a cause of a cancer I would like to eliminate, because 50% of cancers can be explained by tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco. That's a very high number. Whereas inherited cancer, generally leading to multiple cancer, is about 2% to 5% of total population. That's not high. And I would not call Mrs. Ranjan as multiple malignancy, because parotid cancer एक genetically connected malignancy नहीं है. She will do well. She will do well for that. Lucky somebody thought of it. Lucky somebody did a good surgery on her. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। तो गौतम जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, सिम्टम्स क्या हैं या ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो दिस लाइव शो इज जस्ट बिकॉज वी वांट टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, और इसीलिए हम सर को लेकर आए हैं अपने साथ। रीना मैम है कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछिए सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि अगर चेस्ट पेन होता है तो कैन इट बी द साइन ऑफ कैंसर? ओके, कोई भी, एज आई सेड बिफोर, कोई भी साइन सिम्टम ऐसा है ही नहीं जो कैंसर के लिए 100% स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नीचे से ब्लीडिंग होती है तो क्या वो शॉर्ट कैंसर की वजह से है? नो। सो क्या चेस्ट पेन कैंसर की वजह से हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बट अगर मेरे पास अगर 100 पेशेंट इमरजेंसी में या ओपीडी में आए चेस्ट पेन करके, तो मैं उनमें कैंसर सस्पेक्ट नहीं शुरू करता। चेस्ट पेन के कॉमन कॉजेज सौ हैं। अगर कोई एक एल्डरली 50-60 साल का या 70 साल का पेशेंट चेस्ट पेन करके आता है, जी। मैं उसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सोचने के लिए ज्यादा सोचूंगा। इवन एसिडिटी एंड बर्न एंड सेंटर ऑफ चेस्ट में पेन की कंडीशन ज्यादा सोचूंगा। मेरा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कैंसर नहीं होगा। बट अगर आप मुझे आके बोलते हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली है और मुझे 2 महीने से पेन लगातार चला ही जा रहा है, देन आई वुड नॉट से कि आप कैंसर सस्पेक्ट करके इन्वेस्टिगेट कराओ। आई वुड से कि 2 महीने का पेन एक माइनर ऑर्डिनरी पेन नहीं हो सकता। प्लीज इन्वेस्टिगेट कराओ। किसी आदमी को अगर चोट भी लग जाएगी तो 5, 10, 15, 20 दिन से ज्यादा पेन नहीं हो सकता। बट आपके क्वेश्चन का आंसर है कि चेस्ट पेन का मतलब कैंसर है? ऑब्वियसली नो, वेरी रेयर। सो मुस्कान जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि पेट कैंसर का कैसे पता चलता है? ओके, सो पेट एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। उसमें स्टमक भी है, लिवर भी है, पैनक्रियास भी है, लार्ज बावल भी है, स्मॉल बावल भी है, बड़ा सारा ऑर्गन है। बट आई थिंक उनके कहने का बेसिक पर्पस स्टमक और बावल का है। ज्यादातर लोगों का वजन कम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, लंप होता है, वॉमिटिंग परसिस्टेंट होती है, ब्लीडिंग होती है, अनएक्सप्लेन्ड पेट की स्वेलिंग हो जाती है, पेट प्रेगनेंसी जैसा मोटा मोटा हो जाता है। ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। अगेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस, वॉमिटिंग होने का मतलब ये नहीं है कि स्टमक का कैंसर है। बट अगर आप अगले महीने, 2 महीने, 2.5 महीने तक बार बार वॉमिट करते हैं, खाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपका वजन अगर 10, 12, 15 किलो कम हो जाता है, ये एक अनयूजुअल इवेंट है। ओके, तो उस बात को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। आई थिंक एसेंस ये है कि कोई भी चीज अगर परसिस्टेंट है और अनयूजुअल की तरफ जा रही है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो कुछ और हो, एज मिसेस रंजन सेड, इग्नोरेंस इज द कॉज। ये सोच लेना कि मैंने शायद गोलगप्पे खा लिए थे इसलिए हो गया है, दैट इज नॉट द आंसर। अगर परसिस्टेंट है, प्लीज इन्वेस्टिगेट इट। चाहे वो कैंसर ना निकले, भगवान करे वो कैंसर ना निकले। कुछ लोगों ने पूछा है कि बेसिकली क्या मतलब ऐसा भी होता है कि कैंसर कंटेजियस हो सकता है, छूने से हो सकता है? तो इसका आंसर तो डेफिनेटली नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कैंसर कंटेजियस नहीं है, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली कैंसर में एक चीज नहीं है कि वो कंटेजियस नहीं है। तो और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे कि क्या स्टेजेस क्या होती हैं, और हम मतलब कैसे इसको इनिशियली पता करना पॉसिबल है? कोई अभी ऐसे टेस्ट आए जैसे डायबिटीज के लिए इट्स इजी टू प्रेडिक्ट कि हाँ हो सकती है या नहीं, तो ऐसा अगर कुछ कैंसर के लिए भी है अभी?
सो एक तो है आपके अपने सिम्टम, जैसे मिसेस रंजन बता रही थी कि ब्रेस्ट में लंप था, है, खत्म हो गया, ब्लीडिंग थी, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है। अनफॉर्चुनेटली अर्ली प्रिडिक्ट करने के लिए थोड़े से ही केसेस है जिनको पिकअप किया जा सकता है। उसके ऊपर भी काफी सारी कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल मेल्स में 2 टेस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। वो है 50 साल की एज के बाद लैट्रिन के रास्ते से कैमरे की जांच कराना, क्योंकि कोलोन के कैंसर का इंसिडेंस 50 साल के बाद ज्यादा होता है। प्रॉब्लम है कि ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। प्रॉब्लम होने के बाद भी एंडोस्कोपी कैमरे की जांच कराने में पेशेंट को अजीब सा कष्ट और डर लगता है। सो दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग। एक है प्रोस्टेट कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट कराना, सीरम पीएसए लेवल। अगेन इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, बट अगर आपके यूरिन के रास्ते में रुकावट है, यूरिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, बार बार रात को उठना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपके प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट का इशारा है। हो सकता है कि आपका डॉक्टर पीएसए करके पकड़ना चाहे। फीमेल्स में 2 इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा पॉसिबल है। ऑब्वियसली प्रोस्टेट का तो मतलब ही नहीं निकलता। वो एक तो है जस्ट टू इंटरप्ट, वन क्वेश्चन इज देयर कि जो प्रोस्टेट बढ़ता है तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो वो कैंसर हो ही हो। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन। प्रोस्टेट के सिम्टम्स का मोस्ट कॉमन कारण प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होता। प्रोस्टेट एज के साथ मेल्स के बढ़ता ही बढ़ता है, जैसे कि एज के साथ इज जस्ट लाइक ग्रेइंग हेयर, growing older, maybe spectacles, maybe bend is bending, the back is bending because that's a part of a natural process. Some of them have got prostate cancer, but enlarging prostate and urinary difficulty should not be taken as a manifestation of prostate cancer. But जो मेरा point कट गया, and that was more important, females को 18 साल की एज के बाद अपने यूट्रस के मुंह सर्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। ये कैंसर पे विक्ट्री है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और स्टार्ट होती हुई विक्ट्री है इंडियन वर्ल्ड में। गायनेकोलॉजिस्ट पैप स्मीयर करके अर्ली कैंसर को पिकअप कर सकते हैं। जो कॉमनेस्ट फीमेल कैंसर था सर्विक्स का इज नो लॉन्गर कॉमन। एंड आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके आप अपनी सिस्टर्स और अपनी बेटियों के लिए सर्विक्स के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए पार्शली सर्विक्स की वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कंट्रोवर्शियल है, पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 या 50 साल की एज के बाद इवन इफ कोई लंप नहीं है, आप 2-3 साल 4 साल में या 2-3 साल में एक बार जाके ब्रेस्ट का एक्सरे मैमोग्राम करा सकते हैं, so that you can pick up the disease 5 years, 2 years, 1 year earlier than that. But it remains a controversial topic. But for an individual, this can be done. So females के लिए cervix examination, cervix की vaccination, possibly mammogram. Males के लिए maybe colonoscopy, even females के लिए PSA, prostate cancer, controversial. Individual case, yes, is I think what is to be done. And look after your symptom. Unusual, please go to your doctor. And don't have to come to a cancer doctor for that. सर एक क्वेश्चन है कि पैप स्मीयर टेस्ट अगर नेगेटिव है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर स्टमक में स्टिल रेगुलर पेन है, बट पैप स्मीयर टेस्ट नेगेटिव है। पैप स्मीयर टेस्ट अगर नेगेटिव है, और आजकल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग भी करते हैं, जिससे पैप स्मीयर काफी रिलायबल हो जाता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट डज नॉट गिव यू ए गारंटी कि अगले 5-10 साल 15-20 साल तक कुछ नहीं होगा, बिकॉज वायरस तो बाद में भी आ सकता है। बट लार्जली 2-3-4 साल के लिए आप एश्योर हो सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट सबको दोबारा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बुलाएगा। आपके पेट का दर्द का कारण कुछ और है। अगर पैप स्मीयर नॉर्मल है तो सर्विक्स का कैंसर आपके पेट के दर्द का कारण नहीं, कुछ और हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोई और यूट्रस ओवरी की डिसीज हो सकती है, किडनी का स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो उसको अब आप पैप स्मीयर से डिस्कनेक्ट कर दें, उसको अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कराएं। आपका डॉक्टर होपफुली किसी और थॉट से चलेगा। यू आर लकी कि आपका पैप स्मीयर नॉर्मल है, वी आर हैप्पी। मुस्कान जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सर निधि जी का क्वेश्चन है कि वैक्सीन कैंसर के हैं क्या? तो जैसे अभी आपने बताया सर्विक्स कैंसर का तो है, और बाकी अभी और किसी कैंसर के लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई वैक्सीन आया है प्रिवेंटिव। थोड़ा सा है। तो मिसेस रंजन, आपने अपनी अपनी फैमिली में वैक्सीनेट सर्विकल कैंसर के लिए कराया कि नहीं कराया? सर किसी का नहीं कराया, लेकिन सिर्फ मेरा सो हुआ है। देयर यू आर, देयर यू आर।
आपको अनफॉर्चुनेटली डिसीज हुई, बट आपने अपनी सिस्टर्स, और इफ यू हैव अ डॉटर, आई डोंट नो यू आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर और नॉट, आई हैव एब्सोल्युटली नो So, आइडिया, बट that's what I'm trying to say. Please, you and everybody who's less than 45 years of age, meet your gynecologist and ask your sisters and your daughters, please get vaccinated. We can't prevent all cervical cancer, but we can defeat this dreaded disease. तो आई डोंट नो, एक क्वेश्चन था, बट मैं मिस्टर रंजन से जानबूझ के इसलिए पूछा कि मिस्टर रंजन आप कल जाके अपने आप को या बाकी लोगों को वैक्सीनेट कराएंगी, बिल्कुल एटलीस्ट सर, 3 4 5 बिल्कुल लोगों का फायदा होगा इस केस के। बिल्कुल सर। डेफिनेटली आपने हमारे क्वेश्चन ये पूछा था, मैं इस भूल शो गया। का मोटिव यही है। तो क्वेश्चन यही था हाँ, बेसिकली कि वैक्सीन सभी हाँ। कैंसर्स के लिए है, यानी जैसे आपने बताया सर्वाइकल ये सर्विक्स के कैंसर के लिए है वैक्सीन। तो ऑल द तो एक व्यूअर्स और जो भी वैक्सीन है, रिलेटिव हैं आपकी एक फैमिली और में। वैक्सीन है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, जो कि हेपेटाइटिस प्रिवेंट करने के काम आती है। बट हेपेटाइटिस बी हमारी कंट्री में लिवर कैंसर का कॉमनेस्ट कॉज है। ओके। ओके, सो अगर हम बचपन में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं, जो कि अब यूनिवर्सल प्रोग्राम में आ गया है, यस तो सर। होपफुली आगे जाके लिवर के कैंसर का वन ऑफ द कॉमन कॉज गायब हो जाएगा। सो बट क्योंकि ये बचपन में ही लग जाती है, पीडियाट्रिशियन आजकल बड़े सतर्क हैं और सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं। तो है, पर किसी को इस बारे में आइडिया नहीं लगता कि एक और वैक्सीन है जिससे लिवर कैंसर कम होता है। तो अगर कोई नहीं है, बचपन में नहीं लगाया है, क्योंकि ये सब 10 15 20 साल पहले शुरू हुआ था, तो इट इज सेंसिबल कि सब लोग अपने डॉक्टर से बात करें कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में सोचा जा सकता है। एंड हेपेटाइटिस बी से होने वाला लिवर कैंसर इज मोर वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कैंसर, वेरी हॉरिबल। तो मिसेस रंजन, एक और वैक्सीन आपके लिए। सर, sure. So viewers, please note down. We are having two vaccines for liver cancer. It is hepatitis B vaccine, and for cervical cancer, sir has already told you guys. तो एक क्वेश्चन है कि क्या टीथ फिलिंग से माउथ कैंसर हो सकता है? अगर रब करे, अगर आपकी टीथ फिलिंग गलत है, इरिटेशन होती है, सो वन ऑफ द रीजन गुटके की वजह से जो कैंसर होता है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो इरिटेटिंग होते हैं। गलत टीथ, टेढ़ा टीथ, या फिलिंग जो कि बाहर निकल रही है और एक कंटिन्यूअसली इरिटेट 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 करती रहेगी, तो इट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज। सो इल फिटेड टीथ, इल फिटेड डेंचर्स, एनीथिंग जो कि माउथ को इरिटेट करती है, जैसे लोग तंबाकू मुंह गले में डाल के पड़े रहने देते हैं और वो इरिटेट करता रहता है, दैट इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। सो अगर आपको लगता है कि आपकी फीलिंग ठीक नहीं है और वो बार बार जबान पे या गाल पे टच होती है और इरिटेट होती है, देन इट शुड बी करेक्टेड। सर इसमें क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन क्या कोई भी ले सकता है? तो इट्स ओके, आई थिंक कोई भी लगवा सकता है। एनीबडी कैन डू। हो सकता है आपका डॉक्टर ये चेक करना चाहे कि क्या आपको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी हो चुकी है और आप अपने आप नेचुरल मैकेनिज्म से ठीक हो चुके हो, तो आपकी नेचुरल वैक्सीनेशन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम में कोविड किसी को हो जाए और अगर बाद में भगवान करे कोविड वैक्सीन आ जाए, तो क्या आप कोविड हुए पेशेंट को कोविड वैक्सीन लगवाओगे? मोस्ट लाइकली नो, बिकॉज वो तो नेचुरली वैक्सीनेट हो चुका है। पॉसिबली आई कांट से बेस्ट तरीके से वैक्सीनेट हुआ है, बिकॉज भगवान ना करे किसी को कोविड हो, बट जो वैक्सीनेट नेचुरली हो चुका है उसको वैक्सीन की क्या जरूरत है। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि कितने स्टेजेस होते हैं कैंसर के बेसिकली? जनरली हम कैंसर को मोटा मोटा 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम स्टेज 1 एंड एंडिंग एट स्टेज 4 विच इज द मैक्सिमम। सो सर क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं काफी हद तक कैंसर को? ओ यस, ओ यस, जो इंक्लूडिंग स्मोकिंग इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एंड अ लाइफस्टाइल थिंग। अगर आप स्मोकिंग को इंक्लूड करके लाइफस्टाइल एंड बाकी चीजों में काउंट करें, तो आई थिंक lifestyle is responsible for about 70-75% of the cases of cancer, but that includes bad habits like smoking, okay, which is a lifestyle issue. I mean, you can't say कि अगर आज की young population young age पे smoke और behavioral pattern दिखाती है, is it a lifestyle problem? I think it is a lifestyle problem. तो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से मेजॉरिटी ऑफ डिसीजेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उनको करेक्ट या उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, विच मीन्स गुड एयर, गुड हेल्थ, गुड एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, लुकिंग आफ्टर फैमिली,
spending time with the people whom you should be spending, and controlling your psychological well-being also. These are immensely important. So, ma'am, I'm coming to you. What are the changes like you have made in your lifestyle after detecting with this thing? Hello, ma'am. Am I audible? Ma'am, I just wanted to, yeah, I'm just asking that what are the lifestyle changes you have done in your, like, what you have changed for this thing? Is there any specific change you have made after the like doctor have prescribed you or something? आपको लगा कि नहीं अभी ये change करना चाहिए या something like you have changed your fooding habits or the exercising, incorporating exercise, anything like that जो आपने उसके बाद start किया हो जैसे आपने पहले ही बताया था you are like very healthy person, you were very routine person. I think Mrs. Ranjan को clearly audible हो नहीं रहा There है. is some network issue. Oh yeah, yeah. I'm sorry. Thank you. We got reconnected. Can you please repeat your question? Yes, ma'am. I was just asking कि आपने अभी क्या ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस किए जैसे आपने पहले बताया कि आप ऑलरेडी बहुत रूटीन थे आपका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी था बट आफ्टर डिटेक्टिंग विद कैंसर व्हाट अदर लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स यू हैव मेड इन योर लाइफ स्टाइल चेंज any specific exercises or any fooding habit changes? There are 4 things that you got to change. First is your thought process. You got to be positive. 2 is your I think there is some network issue. Meanwhile, take other question. Maybe we can get back to her. Yes, definitely. I lost you. Okay. There's a network problem. Okay. So, ma'am, is it okay now? Yeah. I'm really very sorry. I think there is a network problem. My apologies. It's okay, ma'am. So, ma'am, I was just asking about your lifestyle changes. That's what I said. Your thinking should be very positive. You should have a very positive mind, because if you have a positive mind, you'll have a positive attitude to dealing with things. You got to eat right. You cannot be haphazard in your eating habits, in your dietary habits. You got to be selective and choosy now. You have to eat a lot of antioxidant kind of food to stay healthy. Second, you have to exercise because that contributes and attributes to it. Then you got to sleep well. You got to have an adequate kind of sleep. And you got to be stress-free. You got to take life one day at a time, because you have to look forward. You cannot undo what is done, but you can stop things from happening again with little precautionary measures. Okay, so Mr. Shahjad का एक question है कि what are the various ways for treating cancer? Okay, so कैंसर के ट्रीटमेंट के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है सर्जरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, देन रेडिएशन, कीमोथेरेपी. बट आई थिंक ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव में करंटली काफी चेंज है, हर फील्ड के अंदर काफी चेंजेस आए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सर्जरी की बात बोलें तो हाथ से खुलने की जगह लेप्रोस्कोपिक दूरबीन की सर्जरी एक सर्जरी की नई इनोवेशन है. करंटली हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जगह रोबोटिक सर्जरी पे आ गए. तो रोबोटिक सर्जरी मींस कि आपको मिनिमल कटिंग से मैक्सिमल बेनिफिट मिलता है, बिकॉज रोबोट का आर्म वहां जा सकता है जहां पे आपका हाथ और आंख नहीं पहुंच सकते. यू आर यूटिलाइजिंग द साइंसेस. सिमिलरली लेट्स से रेडिएशन के अंदर यू कैन ट्रीट द होल एरिया और यू कैन स्पेसिफिकली ट्रीट द ट्यूमर. तो जो अपकमिंग साइंस की इवोल्यूशन है लाइक ट्यूमोथेरेपी, उसके अंदर आप सिर्फ ट्यूमर को ट्रीट करते हो और साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करते हो. These are advances. मेरी फील्ड कीमोथेरेपी जिसमें आप केमिकल्स देके ट्रीट करते हो, बट देयर हैव बीन सो मेनी न्यू एडवांस चेंजेस. बहुत सारे पेशेंट्स को अब आप कीमोथेरेपी का ऑप्शन नहीं देते हो, बहुत सारे पेशेंट को अब आप टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन देते हो. द ड्रग्स which seek the cancer cells treat the cancer cells and ignore the normal cells.
many patients do not require injectable treatment. Many patients can be safely treated with an oral tablet formulation of one or the other drug. Then there are upcoming immune therapy treatment. आई एम श्योर हर एक किसी आदमी ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि जब किसी को फ्लू वायरल फीवर होता है तो हम 2 4 6 7 8 10 दिन में ठीक हो ही जाते हैं. हमारे को किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जनरली आके अटैक करती है. इसीलिए किसी को वायरल नहीं होता, किसी को वायरल 1 दिन का होता है, किसी को 7 10 दिन का होता है. सो व्हाई कैंसर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इम्यूनिटी सिस्टम? हमारी इम्यूनिटी कैंसर को क्यों नहीं कैप्चर कर लेती? हर एक आदमी को कैंसर क्यों नहीं होता? हर एक स्मोकर को कैंसर क्यों नहीं होता? इसके लिए एक पॉसिबल रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में अच्छी, किसी में बुरी, किसी में डिफरेंट है. नाउ वी नो कि लैक ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी या कैंसर से पैरालाइज्ड इम्यूनिटी रिजल्ट्स इन मेनी ऑफ दीज कैंसर. सो न्यूअर ड्रग्स सजेस्ट कि आपको केमिकल्स यूज करने की जगह आपको इस इम्यूनिटी को स्टार्ट करना है. If you're able to start your immunity, then you're basically controlling your disease by the best possible mechanism. You're using your own body. There are so many other treatment strategies जिसके अंदर investigative tools बहुत अच्छे हो गए. आप जिसको पहले स्टेज 3 बोलते थे, आप स्टेज 1 बोलते हैं, स्टेज 1 बोलते थे, स्टेज 3 बोलते हैं. So answer to your question, surgery, good surgery. Radiation, better and good radiation. Systemic medical oncology, better chemotherapy, no chemotherapy, simpler oral treatment, only kill cancer cells, and think of something different. Why use chemicals? Why not use maybe immune system to treat? Maybe in future something different. And the treatment of cancer also has many other components, and that includes a psychology counselor who assists the patient. It includes a dietitian who sits down with the patient and the family. Okay, it also includes support systems, and it actually also include caregiver and their training, because 50% of our treatment is also involving caregiver. They go through a lot and they are the people who look after the patient, so that is also a part of the treatment. The people who come with the patient are an important caregivers. They're also part of the treatment, so it's a very complex thing. I hope it answers. Yes, definitely. So एक क्वेश्चन ये भी है कि इंक्रीज कैसे करें इम्यूनिटी को? Okay, एक तो नेचुरल मैकेनिज्म है, एज मिसेस रंजन वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज नॉन स्पेसिफिक, जनरल बट ब्रिलियंट. एंड अगर आप अपनी जनरल वेलबींग दौड़ के, खा के, ढंग से खा के, एक्सरसाइज करके, मेंटल वेलबींग करके करते हैं, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आप अच्छा फील करते हैं. आप पतला होते हैं, पतला फील करते हैं. ओके, देन आपकी जो वेलबींग है वो कैंसर के लिए डायरेक्टेड नहीं है. आपकी वेलबींग आपके अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए डायरेक्टेड है, आपके हार्ट के लिए डायरेक्टेड है, आपकी डायबिटीज के कंट्रोल के लिए डायरेक्टेड है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए डायरेक्टेड है, आपकी वेलबींग एंड लॉन्जिविटी के लिए डायरेक्टेड है, एंड ऑल्सो कैंसर के लिए डायरेक्टेड है. ओके, मैं जिस इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ वो एक नेचुरली इंप्रूवमेंट वाली इम्यूनिटी नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट से इंप्रूव करने वाली इम्यूनिटी है. वो उस इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ जो अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर पेशेंट में लॉस्ट हो गई थी. हाँ, सो हर एक आदमी अपनी जनरल केयर से इम्यूनिटी बढ़ा सकता है एंड होपफुली कैंसर को होने से रोक सकता है. बट अगर अनफॉर्चुनेटली करने के बावजूद या ना करने की वजह से ऐसा हो गया है तो उस इम्यूनिटी को वापस जगाने के लिए मेडिसिन अब आगे काम कर रहा है. सर एक क्वेश्चन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे मे बी दिस इज जस्ट साइकोलॉजिकल कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे नो द थिंग्स. तो 2 ग्रुप्स को कीमो दिया गया एंड जिनको पता था कि नहीं इसका साइड इफेक्ट होता है, दे हैव लाइक दे फेस सो मेनी ऑफ दे शोड मेनी साइड इफेक्ट्स. बट जो रूरल एरियाज से थे जिनको नहीं पता था कि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी ने साइड इफेक्ट्स नहीं शो किए. तो इज इट जस्ट ड्यू टू द साइकोलॉजी और देयर थॉट प्रोसेस? No, I don't agree with that. साइड इफेक्ट सबको बराबर ही होते हैं. चाटे का दर्द सबको बराबर ही होता है. Right. आप बता के मारते हो तो दूसरा घबरा जाता है पहले से ही, और मे बी फील ज्यादा होता होगा. So it यहाँ was पर just the रेडी है, research आई basis एग्री. maybe. और Yeah. आप किसी को झटके से मारोगे तो उसकी घबराहट नहीं होगी, वो बाद में घबराएगा और बाद में आपको मारेगा. दैट्स अनदर. बट आई डोंट थिंक कि रूरल पॉपुलेशन को कम साइड इफेक्ट होते हैं. अनफॉर्चुनेटली रूरल पॉपुलेशन में सबड्यूड पॉपुलेशन भी है.
एक जनरल कंसेप्ट है कि आप अपने सिम्टम को ज्यादा एक्सेजरेट करके या इवन बताने की कोशिश ना करें। तो जो हमारे पास रूरल पॉपुलेशन से आते हैं जनरली उनको सुनने वाला उनके फैमिली में भी रिलेटिवली होता है कि दिस इज अ कॉमन थिंग, कॉमन प्रॉब्लम। दे आर ऑल्सो यूज टू हार्डशिप ऑफ लाइफ। ओके, सो उनके लिए कंसेप्चुअली भी डिफरेंट है। पेन, प्रॉब्लम उनकी लाइफ का, हर एक का नहीं, उनकी लाइफ का एक औसतन आम इवेंट भी होता है। तो हो भी सकता है वो जिंदगी में आने वाले एक और पेन को ज्यादा आराम से सहन कर लेते हो, और जो 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 मिनिमल प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करता उसके लिए तो आई एम श्योर कि उसके लिए सिम्टम्स ज्यादा फील होंगे। अगर आप एसी में रहेंगे तो आपको गर्मी तो लगेगी, और अगर आप रहते ही फील्ड में हैं तो आप बोलो कि गर्मी लग रही है तो बोलेगा शायद यहाँ तो एसी में ट्रीटमेंट हो रहा है तो मुझे तो यहाँ ठंड लग रही है। Right. Correct. So I think, but I think pain and symptoms are universal. I don't agree कि rural, poor, Yes. weak. I don't think they are, but everybody has a different mechanism of coping and of commenting and how they think about it. Some patients say कि vomiting ही तो हो रही है, मैं pregnant थी तभी हमको vomiting होती थी। Fine. पर एक दूसरा patient हो सकता है vomiting. This is an unacceptable thing to me. So I think it's a relative thing. Definitely. सर आजकल किड्स में बहुत देखा गया है कैंसर बिकॉज व्हेन आई वाज इन अपोलो, आई वाज वर्किंग विद अपोलो इन क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट, एंड वन स्टूडेंट ही वाज इन आई गेस क्लास 11th, और उसको सडनली हेडेक हुआ, एंड व्हेन ही केम टू अस ही वाज डायग्नोज्ड विद स्टेज 3 कैंसर. So why this is very common in kids right now? What can be the cause? Okay, so मैं आपको एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, तो आई कैन नॉट से कि पीडियाट्रिक्स में या बच्चों के एज ग्रुप में कैंसर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। आई कैन गिव यू अ जनरल आंसर। कैंसर का इंसिडेंस जनरली बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दो शक ही नहीं है। पीडियाट्रिक्स का मैं स्पेसिफिक आंसर तो अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाऊंगा। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। देयर इज अ जेन्युइन इंक्रीज इन कैंसर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, Yes. नंबर वन। सेकेंडली, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बेटर हो रही हैं, तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बेटर होने से आप जो पहले डायग्नोज नहीं होते थे अब आप पिकअप कर पा रहे हैं। थर्ड, पॉपुलेशन का जनरल नजरिया कैंसर के लिए चेंज हो रहा है। अगर आपके 60-70 ईयर ओल्ड किसी में डायग्नोसिस होता था देन इट यूज्ड टू बी हश्ड अप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कैंसर हो गया है, मामला खत्म है, चुपचाप जाने दो, किसी को इन्फॉर्म मत करो। अब ये कंसेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर है तो आप ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करोगे। ओके, सो मे बी आई हैव मिस्ड वन और टू पॉइंट। सो जेन्युइन इंक्रीज है, इंक्रीज इन डायग्नोसिस है, लोगों के रवैये में चेंज आ रहा है। आई थिंक दीज आर वन ऑफ द मेनी रीजंस जिसकी वजह से अब कैंसर एक कॉमनैलिटी में दिखाई देता है। आई एम श्योर कि अगर ये एडल्ट पॉपुलेशन में हो रहा है तो इसमें से कुछ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी होता होगा। ऑब्वियसली पीडियाट्रिक बच्चों की पॉपुलेशन में आप पहले भी डायग्नोसिस को दबा के नहीं रखोगे, अभी भी दबा के नहीं रखोगे। एक 70 ईयर्स की एज में डायग्नोसिस और 10 साल की एज के डायग्नोसिस में बच्चों का या पेरेंट्स का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। बट आई कंप्लीट, सो आई डोंट थिंक वो रीजन होगा। आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट आंसरिंग कि बच्चों में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बट आई कैन आंसर कि द रेट विद विच द कैंसर इज इंक्रीजिंग इन द कम्युनिटी इज ट्रेमेंडस। It is becoming the commonest leading cause of death, more than infections probably, and even more than cardiac heart causes. It's a big devil. It's a big devil. Possibly we also are also responsible for it. The kind of pollution, the kind of smoking, the kind of behavior we have, we are possibly responsible ourselves. सर एक बहुत जनरल एक लोगों में ऐसी धारणा है बेसिकली कि जो चाय के कप्स होते हैं, यूजुअली जो प्लास्टिक वाले कप्स होते हैं, How? उनमें भी चाय पीने से क्या दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द कैंसर? So I think कोई भी चीज आर्टिफिशियल यूज करते हैं तो मन में डाउट आता है, बट आई थिंक ऐसी कम्युनिटी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आई गिव यू सम ऑफ देम, मे बी मैं सारे कवर नहीं कर पा रहा। प्लास्टिक है, माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रिकल टावर है, देन इवन मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। आई थिंक कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा करने से हाई इंसिडेंस होता है। जो लोग हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स के आसपास रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं, तो अगर बहुत लंबी स्टडीज को देखा जाए तो इंसिडेंस डिफरेंसेस बिटवीन पीपल लिविंग
near high electrical wire tower vis-a-vis other areas is not different. Okay, so ये एक thought process है कि फोन यूज करने से, माइक्रोवेव यूज करने से, प्लास्टिक यूज करने से, पूरा प्लास्टिक यूज करने से, well, this is also because we naturally see deep in our heart, almost everybody believes that if you are as close to nature, it is good for you. So deep in our heart, we believe that plastic is not nature. Possibly, possibly, wood may be close to nature. Yeah. Possibly, pottery is close to nature. Okay, but how do we do that? How do we do that? So start replacing all your tawas and everything, and then you will not be able to live. So you have to think about it. Deep in our heart, we all agree with that कि अगर हम nature के close होंगे तो possibly हम ज़्यादा comfortable and ज़्यादा healthy होंगे. But you got to live. Either you need to regress 200 years ago, or you need to live in 2020 with Corona. Okay, so there is a give and take here. You're losing something, but you're possibly, it's an example is like that. अगर आपकी 10 pregnancies होती हैं तो breast cancer के chances कम होते हैं. Start telling the ladies that you need to deliver 10 times. Can you do that? Now talk to your grandmother's mother. She will say 10 because I had 20 and 10 died. Correct? And that's why I didn't have breast cancer. Start doing it. So every time they say plastic, they said get 10 babies and then we'll talk about the plastics. Okay. Sir, may I ask you a question, please? Yes, ma'am. Is aluminum foil also very harmful, sir? Sorry, say that. Say that again, ma'am. Aluminum foil, sir. Ma'am, point सारा का वही है. Aluminum is not the way the nature was designed for us, but it was a mechanism to bypass many other things to make our life comfortable. Evidence? No. Threat from deep inside my heart? Possibly yes. Is it evidence based? No. But then if I really agree to it, तो मेरी वाइफ जो मुझे सुबह एल्यूमिनियम फॉइल में खाना देती है वो खाना पैक करके नहीं देगी. You know what I mean? Lifestyle. This is lifestyle, and each of them is contributing maybe to a tiny quantum, and these tiny things are possibly adding on and creating trouble. How much am I willing to forego this? That is the point. If you are able to forego this and many others, so I would say कि Zoom meeting possible नहीं है because of artificial mechanisms से Zoom meeting कर रहे हो. Who knows, tomorrow somebody would say looking at Zoom causes it. Oh. looking at a video causes it, makes you I go crazy. That's possible, but then I think what can we do? Well, it's a wonderful gift of technology that we all are cherishing now. Yeah, so see, everything has a plus and minus points. I agree, but I mean, you lose something, you gain something, and you lose something, I guess. But how much you are losing, we don't know. But I'm sure, given a choice, अगर कोई हमें बोले कि हम यही benefit बिल्कुल naturally achieve करना चाहते हैं, everybody will jump for it. Yes. So that's why now this is kind of a business कि वो natural चीजें और aluminium foil को हटाओ और cotton wraps use करो. Yeah. And that all clay bottles and everything we are now having. It is up to us only कि हम कितना उसको अपनी daily life में incorporate कर सकते हैं, कितना हम अपनी lifestyle change कर सकते हैं. Exactly, I agree. Whatever is practical should be done. Whatever is practical. So if you go to a vegetable vendor, you should have a thala in your hand, which is not a plastic. The way we used to do when I was kid, my mom used to go with a cotton thing, and we used to put all vegetables together and come back home and chop it. But now we get plastics. So these are just small efforts we have to incorporate in our life, and we are only responsible for everything in our life. So just guys, be cautious, take care of yourself, don't be ignorant. एंड सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जो सिस्ट्स होते हैं बॉडी में, क्या हर सिस्ट एक लाइक कैन बी अ कैंसरस सिस्ट और इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ?
ज़्यादातर 99.9% cyst in the body will not turn out to be cancer. If the word is appropriately used, cyst basically means थोड़ा सा पानी का कलेक्शन, जैसे लिवर में सिस्ट है, किडनी में सिस्ट है. ये एक नेचुरल चीज है जो बढ़ती उम्र के साथ छोटे पिन पॉइंट हेड या पिन हेड से बढ़ता बढ़ता अंगूर के दाने तक पहुंच सकता है. एक्सट्रीमली रेयरली इट मे टर्न आउट टू बी ए कैंसर. बट अगर कोई आपको क्लियरली सिस्ट का डायग्नोसिस देता है तो वो नेचुरली मीन कर रहा है कि ये कैंसरस नहीं है. Okay. Okay, ma'am, you want to say something just to give some message to our viewers? For very importantly, I think we all need to educate ourselves. We have to educate ourselves. We have to not succumb into a shell. We should come out, we should talk. Everybody has their limitations and restrictions for doing things, they should be communicable. They should be able to communicate. They should be able to talk to people if there is a problem. They should be reaching out to people, not feeling that it's a taboo. No ailment is a taboo because there is a cure to everything if it is rightly and timely diagnosed. There are doctors. You should trust your doctors. You should trust your instinct. You should be answerable to yourself and act timely, eat healthy, stay fit, do things that make you happy because that's the mantra, and rest, everything is fine. God is kind. Thank you so much, ma'am. And sir, if you want to say something to our viewers. Oh, Mrs. Ranjan ने सारी मेरी बातें छीन ली हैं, so she should have said one or two things, three things less. But I do agree. I think एक तो आंसर कैंसर के लिए स्पेसिफिक है. Anything unusual, do something. Medicine has not yet reached where it should have reached. Yes. It will eventually, hopefully, will reach. And but a lot can be done. Hopefully, more can be done. And I think looking after your body, both psychologically as well and physically, obviously, is an extremely important thing. And a psychological well-being is extremely important. Is very important. Search for happiness, easy said than done. But if you have found happiness, your life is done. Because then that's the only aim of the life. I believe if you can find real happiness, then you are sorted. And it's a real happiness to have you both today with us. Thank you. So thank you so much. Yes, ma'am. I would like to add something. Yes, ma'am. You got to love yourself first in order love others. So unless you don't fall in love with yourself and worship your body, which is a temple for you, you will not be able to do anything. And I really thank Dr. Agarwal. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And you'll get vaccinated. Remember, you and your family. Don't forget about it. No, I won't. Thank you, Garima. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. So, viewers, at last, I just want to add few things जो अभी सर ने बताई हैं कि सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज में जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं, प्लीज लिसन टू अस केयरफुली. जो भी सर ने कहा, रिड्यूस दीज थिंग्स एंड हैव हेल्दी लाइफ स्टाइल. अगर कुछ सडन वेट लॉस होता है, सडन वेट गेन होता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं, अनएक्सेप्टेबल, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या रीजन है, just go and check with your doctor. Don't neglect your health, please. That is first and foremost thing. Your body is the thing you have to live in. घर है जहाँ आप रहते हो, बट स्टिल आप अपनी बॉडी में रहते हो, तो सबसे पहले उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. And I'm just ending the session with big thanks to both of you. Thank you, sir. Thank you for giving us time, and thank you, ma'am. You have shared your story, and I believe कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो definitely motivate होंगे आपको देख के, आपकी story सुन के. Thank you. Good. Big God bless to everyone. Thank you, sir. Chalo. Thank you. Bye bye. I'll make it. Bye bye. Take care.